مائی کا لال، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں ترمیم یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ نہیں ہے۔ جب یہ آسمان سے اترا، جب یہ آسمان سے اترا صحیفہ نہیں ہے، یہ لولی لنگڑی عدالتیں ہیں جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں 8 سے 10 نڈر اور بہت بہادر جج پیدا کیے ہیں، مگر آج ان عدالتوں میں ان آدمیوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے جو ایلیویٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ ایلیویشن میں نہیں آئے ہیں، یہ تقرریاں ہوئی ہیں۔ جیسے ایک سرکاری ملازم کی تقرری اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی اسی طریقے سے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ بس کراچی جانا ہے، مگر میری فلائٹ اتنی جلدی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک بیٹھ کے میں نے تقریریں سننی تھی، آپ نے کہا کہ نہیں پہلے علی احمد کو تقریر۔ یہ حال اور لارڈ کے وکیل، یہ حال، اس میں ہمارے ساتھیوں کی گونجتی ہوئی آوازیں، یہ حال، اس میں ہر ظلم اور بے انصافی کو للکارنے کی آوازیں، یہ حال، زمانہ، ایک وقت، ایک بہت بڑے وقت سے یہ حال وکیلوں میں ایک جوش جذبہ پیدا کرتا رہا ہے۔ جب تک یہ حال ہے اور انشاءاللہ یہ حال رہے گا، اور جب تک اس میں اس طرح وکیل جمع ہوتے رہیں گے، کوئی مائی کا لال وکیلوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا تو اپنی جگہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب آپ آئین کے خلاف بات کرتے ہیں، جب آپ رول آف لا کو رونتے ہیں، جب آپ عوام کے غریب لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو یہ پاکستان کے وکیلوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں آج پھر کہتا ہوں، یہ پاکستان کے وکیل ہیں جنہوں نے ہمیشہ آمروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ ہم وہ وکیل نہیں جو سیکٹر کمانڈ کے آفس میں جا کے حاضری دیتے ہیں، ہم وہ وکیل نہیں جو کورٹ کمانڈر کے پاس جا کے چائے پیتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ، جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک میں آئین اور عدلیہ کے خلاف جب بھی حملہ ہوا ہے تو یہی کور کمانڈر اور یہی سیکٹر کمانڈر، انہی لوگوں نے یہ آرڈرز پاس کیے ہیں۔ آج یہ جو عدالتیں ہیں، پاکستان کی یہ جو عدالتیں ہیں، جن کو ہم نے ہمیشہ لولی لنگڑی عدالتیں کہا ہے، کبھی ہم نے ان عدالتوں کو ہم نے اپنے سر پہ نہیں بٹھایا، ہمیشہ ہم نے کہا کہ یہ لولی لنگڑی عدالتیں نہیں ہیں۔ ان کی تاریخ آپ دیکھیں، یہ صرف ہمارا جوش اور جذبہ ہے، یہ صرف ہمارا ان عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ ہے کہ آج انہی عدالتوں میں شوکت صدیقی جیسا جج پیدا ہوا جس نے پنڈی بار میں سارے وکیلوں کو جمع کر کے کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہمارے کام میں ISI مداخلت کرتی ہے۔ یہی لولی لنگڑی عدالتیں ہیں جس نے اسلام آباد کے 6 ججوں کو پیدا کیا۔ اسلام آباد کے 6 ججوں نے سب نے ایک متفق ہو کر کہا کہ ہمارے کاموں میں، ہمارے جوڈیشل کاموں میں ISI اور دوسرے جو فوج کے کرتا دھرتا ہے وہ ہم مداخلت کرتے ہیں۔ یہی لولی لنگڑی عدالتیں ہیں جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں 8 سے 10 نڈر اور بہت بہادر جج پیدا کیے ہیں۔ جب یہ عدالتوں میں سرے سے کوئی جان ہی نہیں تھی،
कोई दौड़ता हुआ खून ही नहीं था, जब इनकी आंखों में चमक ही नहीं थी, जब इनके अंदर कोई जोश जज्बा दिलेरी नहीं थी, हमने उस वक्त भी इनका साथ दिया और इनको हिम्मत और जुर्रत दी। आज जब इन लूली लंगड़ी अदालतों ने लोग पैदा करने शुरू कर दिए हैं, नगर जज पैदा करने शुरू किए हैं, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? हम इनके साथ हैं। कोई माई का लाल, कोई ये समझता है कि 26वीं तरमीम ये कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है। जब ये आसमान से उतरा, जब ये आसमान से उतरा सहीफा नहीं है। ये 26वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं। जब आसमानी सहीफा नहीं तो इंशाअल्लाह हमारा हाथ होगा, हम लोग होंगे और ये 26वीं तरमीम के पुर्जे से हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। ये आइन का हिस्सा नहीं रहेगा, इसको आइन का हिस्सा नहीं रहने देंगे। ये अब हम ये नहीं कहते कि अदालतें इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करें। हम नहीं कहते कि ये जो आईनी बेंच बैठा है, जो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, जो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते, इन्होंने क्या 26वीं तरमीम को नल एंड वाइड डिक्लेयर करना? ये हम हैं। ये सड़कें, पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के वकला के लिए बुलाने के लिए मौजूद है। आज ये सड़कों में हमको बुलाया जा रहा है। आज हम इधर है, कराची से उस दिन 250 अगर वकील इस्लामाबाद में आकर वो हमारे वकला के प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वकीलों के जज्बात क्या है। आज ये वकील, हम पाकिस्तान के एक एक चीज की रखवाली करने के हम जिम्मेदार लोग हैं। हमने ये फर्ज अपने ऊपर लिया हुआ है। ये जो अदालतें हैं, अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में अगर कोई आदमी किसी जागीरदार और किसी सरदार और नवाब और खान के खिलाफ, उस पे होने वाली जुल्म के खिलाफ अगर वो कोई दाद रसी चाहता है तो वो अदालत आता है। मगर आज इन अदालतों में उन आदमियों को लाकर बिठाया गया है जो एलिवेट नहीं हुए हैं। ये एलिवेशन में नहीं आए हैं, ये तकर्रुरियां हुई हैं। जैसे एक सरकारी मुलाजिम की तकर्रुरी अपॉइंटमेंट होती है, इनकी उसी तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी सरकारी मुलाजिम को, कितना ही बड़ा सरकारी मुलाजिम नहीं हो, अपनी मर्जी के तहत काम करते हुए नहीं देखा है। तो ये जज, ये आईनी बेंच में बैठे हुए जज और इसके साथ दूसरे जज जो कि कभी कुछ दिनों में उनकी भी तकर्रुरियां हुई हैं, ये जब अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, ये उन जागीरदारों, खानों और सरदारों के खिलाफ होने वाली जुल्म के खिलाफ एक आदमी जो गरीब आदमी आता है उसको क्या रिलीफ दे सकते? मगर ये अदालतों को हमने जिंदा रखना है। ये अदालतें जिंदा रहेंगी, ये अदालतें जिंदा रहेंगी तो वकील जिंदा रहेंगे। आज जो पाकिस्तान में हालात हैं, तो हकीकत यही है कि बाकी जितनी भी तकरीरें होती हैं वो सिर्फ लफाजी हैं। वाकई अब तकरीरें अगर होनी चाहिए और करेंगे, हम मर्द के बच्चे हैं, हम करेंगे और वैसी ही तकरीर करेंगे कि एक जर्नल जिंदा है वकील
कोई आया है। जब भी आइन की बात हुई है, अवाम की बात हुई है, गरीबों के हकूक की बात हुई है, हमारे सामने हमेशा जनरल आया है। और वही जनरल हमने सीखा, हमने अगर अपनी जिंदगी में सीखा है आंखों में आंखें डालकर बात करना, तो इन्हीं जनरलों के सामने खड़े होकर हमने सीखा है कि आंखों में आज फिर एक जनरल हमारे सामने है, फिर एक जनरल हमारे सामने है। मत करें, अवाम के वकला के जज्बे से मत खेलें। अवाम और अवाम की नुमाइंदगी करने वाले ये नौजवान वकील, इनका मुकाबला नहीं हो सकता, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। ना पहले कोई मुकाबला कर सका है, ना आज करेगा। मत करें। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है इसमें, और हर तरफ जुल्म और बेचैनी है, हर तरफ भूख और प्यास है, हर तरफ लोगों को कुचला जा रहा है, हर तरफ लोगों को सोचने नहीं दिया जा रहा है, हर तरफ लोगों को ख्वाब नहीं देखने दिया जा रहा है। मत करें, मत करें। वो वक्त आ गया है कि दिन आएगा, अभी वो दिन आ रहा है, वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान के ये 25 करोड़ अवाम सब के सब बाहर घरों से बाहर होंगे। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अब सड़कों पर होंगे। वो सब के सब, क्या बाप, क्या माँ, क्या बेटा, क्या बेटी, क्या बहन, क्या बहू, सब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बीमार, क्या सेहतमंद, सब के सब, जब ये 25 करोड़ अवाम सड़कों पे होंगे, जब ये 25 करोड़ अवाम सड़कों पे होंगे, एक मेला होगा, एक मजमा होगा, एक जोश और खरोश का ताकत का मुजाहरा होगा। और जिंदा है वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है हामिद के वकला, जिंदा है मेरे कायद के वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, तो आकर देखो, जिंदा है, टकरा कर देखो, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है पानी पे रवा है, जिंदा है पत्थर में लिखा है, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है। ये लोग, ये अवाम है, 25 करोड़ अवाम से ज्यादा इस दुनिया में ताकतवर कोई चीज ना है, ना कोई माई का लाल देख सकेगा। मत करें। ये छोटे छोटे मोरे जो आपने सामने रखे हैं, इनको एक तरफ करें, और ये जो कह रहे थे कि 11:15 बजे ड्राफ्ट नहीं आया, तो ये ड्राफ्ट बेचने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जनरल वाली तकरीर फिर जब इस साल में आएंगे, आप बेफिक्र रहें, वो मैंने तैयार रखी हुई है। तो इस लिहाज से हमारी आपसे गुजारिश है कि अब सिर्फ सड़कों पे निकलने के लिए तैयारी करें। हम अगर कोयटा से चल कर आते हैं तो समझो चल कर आते हैं, आपको भी निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आप भी यहाँ से निकल के माल रोड पे निकलने की तैयारी करें। वो माल रोड जिसने वकला की तहरीकों को जन्म दिया और कामयाब किया, तो वो 25 करोड़ आवाम का जो मजमा बाहर निकलेगा,
تو پھر وہی کچھ کرے گا جو کہ دنیا میں انقلاب اور عوام کرتے ہیں.